Hi guys, welcome back to the channel. This is Ramya and I am a 12th grader and a humanities student. And this video is going to be a productive study vlog. Also in this video I am going to clear a very important doubt that a lot of you have asked, which is how to complete your backlogs or how to start studying. I know you might think it's already end of June and how can you start studying right now, but I assure you it's not that late and you can start from now onwards. I assume there will be two categories of students. पहला वो कैटेगरी जिसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, एंड द सेकंड कैटेगरी इज़ कि जिन्होंने सिलेबस स्टार्ट किया है बट यू नीड रिविजन एंड यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है. फर्स्टली फॉर द फर्स्ट कैटेगरी जिन्होंने बिल्कुल भी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट doing all the lectures, start reading your chapters. I know there are a lot of students जो ये बोलेंगे कि chapters read करने के बाद भी समझ नहीं आते. I totally understand that because humanities के subjects are tough. I don't know कौन बोलता है कि humanities easy है. I don't find it so easy. There are certain things that you can't understand with reading alone. तो उसके लिए you can refer to any of the teacher of any channel of YouTube, or if you want to take any batch, किसी भी चैनल से देखो, किसी भी वीडियो से देखो, किसी भी टीचर से देखो, दैट डज नॉट मैटर. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि तुमको समझ में आना चाहिए. आई विल शेयर माई पर्सनल फेवरेट यूट्यूब चैनल्स एंड टीचर्स इन सम अदर वीडियो, लेकिन दैट विल नॉट हेल्प बिकॉज ये वैरी कर सकता है कि मेरे को जिसका समझ में आता है उसका तुम्हें समझ में आए या ना आए. सो या यू हैव टू एक्सपेरिमेंट इट. यू हैव टू वॉच 2-3 लेक्चर्स एंड देन फिगर आउट कि कौन से टीचर का या फिर कौन से वीडियो का तुमको समझ में आ रहा है. यू आर कंफर्टेबल विथ एनिमेटेड वंस और टीचर टीचिंग एनीथिंग. देन स्टार्ट डूइंग एटलीस्ट 1 चैप्टर अ डे. तुम ऐसे प्लानर या ट्रैकर काइंड ऑफ बना सकते हो जिसमें सारे चैप्टर्स नोट डाउन करके यू जस्ट हैव टू टिक द चैप्टर्स विच यू हैव कंप्लीटेड, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स अ लॉट. तुम डेली टू डू लिस्ट बनाने के बजाय एक वीकली प्लानर काइंड ऑफ बना सकते हो दैट all these chapters I want to complete in a week. So this is your sign to start completing chapters because this is already June and our board exams are really close. And if you are a regular schooling student तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. स्कूल में जितने चैप्टर्स हो रहे हैं just cope up with that and it will eventually be completed. And make sure that you read the chapter once. स्कूल में जितना भी पढ़ा रहे हो until and unless you read it तुम्हें समझ नहीं आने वाला है. तो NCERT reading is really important. Another plus point for the regular schooling students is that you will be having your exams like on monthly basis or on quarterly basis, so they are really important. Try not to skip any of the exam. Even class test bhi ho to don't skip that because you will be getting an idea about how much you know till now. So that was the thing for the first category. And now if we move to the second category, जिन students ने chapters complete कर दिए हैं but you are not getting the confidence, trust me, I was one of them only. Until I discovered that question practice and writing is really important. The more questions you practice, the more in-depth knowledge you will be getting of each and every chapter. देखो ये कैसे काम करता है. If you read a chapter and उसके बाद तुम्हें ना ये समझ में नहीं आता कि questions कहाँ से बन सकते हैं. If you practice the PYQs or the other competency based questions and case based questions, you get to know कि अच्छा इस टॉपिक से questions बने थे लास्ट ईयर बोर्ड्स में या सैम्पल पेपर्स में या कहीं और जहाँ पे भी तुमको क्वेश्चंस अवेलेबल दिखते हैं. यू विल गेट एन आइडिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज़ दैट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर CUET एग्जामिनेशंस जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे रहे होंगे, यू कैन ट्राई दिस वेबसाइट कॉल्ड selfstudies.com. इसमें तुमको हर एक चैप्टर के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि सेपरेटेड है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए. एंड दिस इज़ टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड. आई यूज़ इट माई सेल्फ एंड मैंने अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. सी दिस इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस. तुम फर्स्ट कैटेगरी में हो या फिर सेकेंड में हो, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्गर देन एवर. जिसके लिए यू कैन बाय एनी ऑफ द क्वेश्चन बैंक्स. वाई स्पेसिफिकली क्वेश्चन बैंक्स? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. यू विल बी हैविंग लाइक द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप्स, लॉन्ग आंसर टाइप, केस बेस्ड, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है. जिसके लिए आई विल सजेस्ट क्वेश्चन बैंक्स फ्रॉम ओसवाल. इसमें तुमको मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न 2027 एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस, जिससे तुमको पता चलेगा कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में. यू कैन यूज़ माई कूपन कोड Ramya10 टू गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन Amazon. बाकी डिटेल्स एंड लिंक्स आर अवेलेबल ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so do check it out. Go and buy these books to just boost up your board preparation.
So yeah, this was the answer for the question, and if you have any other doubts, do consider to write them down in the comment section and I'll try to answer all of them. And with this we come to the end of the video. Don't forget to hit the subscribe button in case you're new. Bye bye, we'll meet in the next vlog.